आपका स्वागत है दूसरे सेशन के लिए। आज हम लोगों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेलर सीरीज के बारे में। आपको जैसे पता है कि पहले आपने जब सेमेस्टर 1 में पढ़ा था उसमें भी टेलर सीरम था या टेलर सीरीज थी। उसमें क्या होता था कि वो जो सीरीज बनाई जाती थी, फंक्शन को डेवलप किया जाता था, वहाँ जो फंक्शन होता था वो रियल वेरिएबल फंक्शन होता था, रियल वैल्यूड फंक्शन होता था। लेकिन यहाँ भी उसी तरह के सिमिलर मैनर में यहाँ हम लोगों को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को डेवलप करना है सीरीज के रूप में, और वो इनफाइनाइट सीरीज के रूप में डेवलप होगा और उसी सीरीज को हम कहते हैं टेलर सीरीज। तो किसी भी फंक्शन को अगर सीरीज के रूप में डेवलप करना है तो देयर मस्ट बी सर्टेन कंडीशंस, और वो कंडीशन इंपोज करने से उस फंक्शन का जो डेवलपमेंट होता है इन फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, उसी सीरीज को दिया गया टेलर सीरीज कहा जाता है। और ये क्या कंडीशन लगाया टेलर साहब ने? टेलर वाज द मैथमेटिशियन। उन्होंने कुछ कंडीशन लगाया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए और उस फंक्शन को एक इनफाइनाइट सीरीज में डेवलप किया और उसी का नाम हम लोग टेलर सीरीज के नाम से जानते हैं। तो नाउ स्टार्ट विद द टेलर सीरीज। Here is the statement. Here is the statement. If A of Z is analytic inside a circle C with center Z is equal to A, then for all Z inside C E of Z is equal to E of A plus Z minus A F dash of A plus Z minus A whole square upon factorial 2 F dash of A double dash of A plus Z minus A whole cube upon factorial 3 F triple dash of A plus dash dash Z minus A to the power n upon factorial n f n derivative at A and so on. This series can also be written as f of Z is equal to sigma n is equal to 0 से infinite a n Z minus A to the power n. We can say where a n is equal to f n derivative at A upon factorial n. And we know that since also we can say this series is known as Taylor series. This series is known as Taylor series. टेलर सीरीज यानी अगर कोई भी फंक्शन एब्जेक्ट आपको दे दिया जाए, लेट अस स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। इफ एब्जेक्ट इज एनालिटिक इनसाइड a circle C with center Z is equals A, then for all Z inside C, we can express this function as an infinite series given by f of Z is equal to f of A, Z minus A f dash A, Z minus A whole square upon factorial 2 f double dash A plus Z minus A का whole cube upon factorial 3 f triple dash A plus dash dash Z minus A to the power n upon factorial n f to the power n derivative at A and so on. And this series can also written as sigma
n is equals 0 से infinite an z minus a to the power n, where an is nth derivative of function at z is equal to a upon factorial n, and this series is known as Taylor series. Now we shall study the proof of this theorem, this series, कि how a function is going to be analytic and inside the circle C, and then how can you choose any point inside C, and at that point this function can be developed as infinite series, and that series is known as Taylor series. Now start with the proof of this theorem. तो चलते हैं हम लोग प्रूफ के लिए. Now the proof of this series, first we look at what is given. It is given that C is a circle. We draw a circle. Here I am just going to draw a circle. Here is a circle C. We can say, suppose this is circle C. Center being at z is equal to a. Here is a is center, and here is C is a circle. अब यहां पर कहा जा रहा है कि फंक्शन ये हमारे पास गिवन है, उसको लिख लीजिए. गिवन दैट f(z) is analytic inside circle C with center, centered at A. Centered at A. Let us take an arbitrary point, and a point, we can say at a point. We can say, let us take any point, we can say any point z inside C. कोई भी पॉइंट ले लेते हैं इनसाइड C. मान लीजिए आपने यहां कहीं कोई पॉइंट ले लिया, यहां कहीं कोई पॉइंट ले लिया z, ये चाहे कहीं भी ले लीजिए, वी कैन से यहां ले लिया कोई पॉइंट z, एंड we draw a circle with center, a circle C1 with center A, enclosing the point Z, and lies completely inside C. हमने क्या किया कि इस A को सेंटर मानते हुए एक सर्किल खींचा. वो सर्किल इस तरह से खींचा कि वो कंप्लीटली सी के अंदर लाई करता है, और लेकिन साथ में इस पॉइंट जेड को भी कंटेन करता है, यानी कि जेड इज इक्वल टू जेड जो पॉइंट है ये इस C1 के अंदर भी है. तो यहां पर हम देख सकते हैं, आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कॉन्सिक्वेंसेस, इसको हम ऐसे लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये ऐसे हो जाएगा. आपको ये पता है कि हमने बताया था कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉसीस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी क्लोज कंटूर के अंदर एनालिटिक है, तो उस फंक्शन के अंदर कोई दूसरा भी कंटूर लिया जाए जो इस कंटूर को कंटेन करता है, तो ये C के अलाउंग जो इंटीग्रेशन होगा fz का, वो आपका C1 के अलाउंग इंटीग्रेशन ऑफ fz होगा. तो हम ये कह सकते हैं बाय कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉसीस थ्योरम,
Cauchy's integral theorem by consequence of Cauchy's integral theorem we have integral along C f of w upon w minus z dw will be equal to integral along C1 f of w upon w minus z dw. We can say ये आपका C1 यानी कि C1 के अलॉन्ग जो लेंगे, यहां पर जो W है, जब W C के लिए करेंगे तो यहां होगा, C1 के लिए करेंगे तो यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा W. फिर हम देखें कि यहां पर इस C एफ W अपॉन W माइनस जेड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल C1 एफ W अपॉन W माइनस जेड डी डब्ल्यू हो गया. यानी आपने ये हमने क्या किया, इस C1 के इंटीग्रल को इस रूप में लिख दिया. अब हम जरा सा ध्यान से देखें, ये इसको अगर देखें हम ध्यान से, तो अगर फंक्शन आपका एनालिटिक है इनसाइड C1, C के अंदर एनालिटिक है तो C1 के अंदर भी एनालिटिक होगा, और C1 के अंदर एनालिटिक होगा तो इंटीग्रल अलोंग C वो इंटीग्रल अलोंग C1 के बराबर होगा, जो हम लिख दिया. अब हमको क्या करना है, वी वांट टू राइट f ऑफ z, f ऑफ z की वैल्यू के बारे में सोचना है. यानी इस पॉइंट पर इस फंक्शन के वैल्यू के बारे में सोचना है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. तो उसके वास्ते हम क्या करते हैं, वी यूज Cauchy इंटीग्रल फार्मूला, Cauchy's integral formula on C1 for the point on C, we can say on C for the point z बराबर a, on C for the point z बराबर a, then that is f of z is equal to, z बराबर a लेने से फायदा नहीं है, we use Cauchy integral formula on C for z, for the point z, not z is equal to a, for the point z. So f of z will be equal to integral C f of w upon w minus z or dw. This is taken as equation number 1. This is taken as equation number 2. Of course, this fz is that is fz is 1 upon 2 pi I integral C f w upon w minus z dw. This is taken as equation number 2. अब जरा यहां ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 2 देखें, इक्वेशन 1 को देखें. इन दोनों इक्वेशन से आपको क्लियर लगता होगा कि 1 अपॉन 2 पाई आई अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसको देखा जाए इस इंटीग्रल को, तो ये एफ डब्ल्यू इंटीग्रल सी एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू की वैल्यू लिख सकते हैं 2 पाई आई इंटू एफ जेड. तो फ्रॉम इक्वेशन 2 From equation 2, from equation 2 1 and 2, from equations 1 and 2, we can write 2 pi I f of z is equal to integral C1 f of w upon w minus z dw, or we can write f of z is equal to 1 upon 2 pi I
इंटीग्रल C1 EF ऑफ W अपॉन W माइनस जेड डी डब्ल्यू, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जरा यहां ध्यान से देखें। अब इक्वेशन 3 में आप देखेंगे और जो प्रूफ करना है उसको देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियर दिखेगा। इक्वेशन 3 में जो प्रूफ करना है और जो इक्वेशन 3 लिखा गया है, इसमें फर्क इतना ही है, यहां भी एफजेड है और आपके प्रूफ वाले में भी एफजेड को दिखाना है। अब हम इस इंटीग्रल को, वी वांट टू डेवलप दिस इंटीग्रल एज एन इनफाइनाइट सीरीज। इफ यू डेवलप दिस इंटीग्रल इनटू infinite series, just I am going to consider the integrand, one part of integrand given 1 upon z w minus z. So on taking now 1 upon w minus z लेते हैं। 1 upon w minus z को लेंगे तो we can write 1 upon w minus a plus a minus z। 1 अपॉन, हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में a जोड़ दिया और a घटा दिया। फिर इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन w माइनस a माइनस, इसमें से लिख सकते हैं हम लोग a माइनस जेड को लिख सकते हैं z माइनस a। ये 1 अपॉन w माइनस a, यहां माइनस हो गया z माइनस a, बिकॉज आई एम टेकिंग आउट माइनस। सो यहां पर w माइनस ए माइनस जेड माइनस ए। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमने क्या किया कि ये 1 अपॉन W माइनस जेड को लिख लिया, इसमें से हम W माइनस ए कॉमन लेते हैं। तो 1 अपॉन जब W माइनस ए कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए, यही बचेगा। अब जरा सोचिए कि 1 अपॉन W माइनस ए वैसे रहने दें और जो डिनोमिनेटर में ये टर्म है 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस, इसको ऊपर ले जाएं। इट में हैपन, तो ये हमारे पास आएगा, वो ये आएगा 1 अपॉन W माइनस ए इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन W माइनस ए टू द पावर ऑफ माइनस 1। दिस इज 1 अपॉन W माइनस जेड की वैल्यू को लिखा। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, इसको हमको एक्सपेंड करना है। तो हमने ये पढ़ा था, वी नो दैट, जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था, बाइनोमियल थ्योरम से बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने ये पढ़ा था कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन। We know that by binomial expansion the above can be written as 1 upon W minus Z is equal to 1 upon W minus A 1 minus Z minus A upon W minus A to the power of minus 1 can be expanding the right hand side by binomial theorem, binomial expansion we can write 1 upon W minus Z is equal to 1 upon W minus A 1 plus Z minus A upon W minus A plus Z minus A upon W minus A का स्क्वायर प्लस Z माइनस A अपॉन W माइनस A का क्यूब एंड सो ऑन, ये होगा।
अब हमको ये देखना रहता है इसमें, ये हम लोग बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया और इसको हम एक्सपेंड कर दिया और ये मिला हमको। हम जानते हैं कि सिंस ऑन C1, हम ये C1 की बात करते हैं। तो C1 में मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि ये आपका C है, ये C था और ये था C1, यहां था A, यहां था Z। तो C1 पर हम देखें तो यहां हो जाएगा W। अब आप बताइए डिस्टेंस ऑफ W फ्रॉम A, यानी कि W इज ऑन द बाउंड्री ऑफ C1 and Z is a point inside C1. So distance of W from A is always greater than distance of Z from A. So on C1 we can write W minus A is less than Z minus A, or we can say W minus A upon Z minus A mod is less than 1 on C1. Thus the above series on the right hand side is uniformly convergent. The above series on the right hand side is uniformly convergent, and so term by term integration is permissible. सो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन इज परमिसिबल, यानी कि क्योंकि ये सीरीज आपका इनफाइनाइट सीरीज हो रहा है और इस सीरीज को इनफाइनाइट सीरीज के साथ साथ में इसका जो W माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का मॉडुलस दिस बिकम्स लेस देन ए। सॉरी, आई हैव डन देयर रॉन्ग स्टेटमेंट। हियर इज दिस वन, W minus A is greater than Z minus A, and we can say here is Z minus A upon W minus A, Z minus A upon W minus A is less than 1. इसको बीच में क्या हो सकता है? यहां पर जब मैंने कहा कि 1 अपॉन Z माइनस A, W माइनस Z को लिखा 1 अपॉन W माइनस A और इसको बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया तो ये आया। अब इस एक्सपेंशन के लिए हम जरा सा उस सर्किल C1 की बात कर रहे हैं, बिकॉज हम C1 के लिए ही काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में आपने देखा होगा, तो यहां पर देख रहे हैं C1 के लिए, तो W से A की डिस्टेंस जो होगी, W होगा C1 के बाउंड्री पर और Z जो होगा वो इनसाइड C1 होगा। तो Z की डिस्टेंस, A की डिस्टेंस Z की हमेशा कम होगी, W की डिस्टेंस A से ज्यादा, ये वाला ज्यादा होगा, यानी कि W minus A will be greater than Z minus A, and so Z minus A divided by W minus A will be less than 1, and this is being less than 1, so the above series on the right hand side is uniformly convergent. और ये आपने पढ़ा था कि 1 plus x square plus x cube and so on, ये एक इनफाइनाइट सीरीज होती है। ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तब होती है जब mod of x is less than 1, and here is at the place of x it is given Z minus A upon W minus A. Since it is being less than 1, so this series is uniformly convergent. And when a series being uniformly convergent, then term by term integration is permissible. तब अगर कोई सीरीज जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज होती है उसमें हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने ये लिखा कि the above series is on the right hand side is uniformly convergent and term by term integration is permissible, और तब जाके ये परमिसिबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, so on multiplying above by 1 upon 2 pi I into E of W and integrating term by term
and integrating term by term around circle C1, then we get around term by term integration is permissible, so on multiplying above by 1 upon 2 pi I fw and integrating term by term around the circle C1, then we get. अब हम इसको लिख सकते हैं, इसको 1 upon 2 pi I integral C1 fw upon w minus z dw is equal to 1 upon 2 pi I integral C1 fw upon w minus a dw plus z minus a upon 2 pi I upon 1 कर लीजिए into 1 by 2 pi I integral C1 fw upon w minus a का होल स्क्वायर dw प्लस z minus a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल है नहीं, इंटू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल C1 fw अपॉन w माइनस a का होल क्यूब dw एंड सो ऑन। यहां कहीं बीच में आएगा डैश डैश, यहां कहीं आएगा z माइनस a टू द पावर n इंटू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल C1 fw अपॉन w माइनस a टू द पावर n प्लस 1 dw एंड सो ऑन। ये आएगा हमारा, जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। यूजिंग कॉसे इंटीग्रल फार्मूला in the above, formula for fz at z is equal to a and its derivatives at z is equal to a is given by। अब इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखें। ये 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल C1 fw अपॉन w माइनस z dw इज इक्वल टू, देखो ये वाला हो जाएगा f ऑफ a, ये हो जाएगा z माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू f डैश ऑफ a, z माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ a, z माइनस a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन, कहीं आएगा एंड सो ऑन। और यहां कहीं आएगा आपका z माइनस a टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n f n डेरिवेटिव एट a एंड सो ऑन, वेयर f n डेरिवेटिव एट a इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 pi I इंटीग्रल C1 fw अपॉन w minus a to the power n plus 1 dw, and this holds for n is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on. This is taken as equation number 3। शायद तीसरा इक्वेशन हमने लिया था, चाहे कोई ले लीजिए आप, कोई क्वेश्चन कोई ले सकते हैं।
अब हम तीसरा लिया था कि चौथा लिया था, पता नहीं, याद है, तीसरा लिया था। तो यहां पर नाउ फ्रॉम 1 and above we have 1 को देखेंगे तो ये चीज हो जाता है एफ ऑफ जेड के बराबर, और ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एंड सो ऑन। यहां कहीं आएगा प्लस डैश डैश जेड माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन डेरिवेटिव एट ए एंड सो ऑन हैंसफोर्थ। और इसीलिए इसका प्रूफ ये समाप्त होता है। तो ये आज का प्रूफ हो गया, और अगले हम लोग वीडियो में एक और थ्योरम है जिसका नाम है लॉरेंस थ्योरम। लॉरेंस थ्योरम के पढ़ने के बाद से देन वी विल अप्लाई these theorems in doing the questions। और ढेर सारे क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हैं जो आपको इस थ्योरम से आधारित पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। सो यू ट्राई टू लर्न दिस, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू प्लीज either you call me or you can WhatsApp me your problem. I assure you I will deal with all the problems in very easy way. Thank you.